ਉਹ ਉਨਾ ਕੁ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਸਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸਦਾ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਕੋਈ ਇਉਂ ਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੰ ਦਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨੇਚਲ ਥਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣਿਆ ਲਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੰਦਰ, ਚਾਰੂ ਜਾਂ ਚਾਰ। ਸੁੰਦਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਕਈ ਕੁ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਿਖਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਠਨ, ਵਿਖਮ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਵਾਵੇ ਦਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਆਪਣਾ ਦਲਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾ ਲਓ ਵੀ ਗਾਵੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੇ, ਗਾਵੇ ਅਤੇ ਗਾਵੈ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਲਾਈਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਬੋਲੋ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਵੈ ਕਿਸੈ, ਕਿਸੈ ਦੇ ਦਲਾਈਆਂ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਬਸ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਜਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀਆਂ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਜਾਣਾ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਊੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਆਈਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਪੰਡਾ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤਾ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਸੰਥਿਆ ਕੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਵੇਸਲਾਪੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਊੜਾ ਊੜਾ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਚ ਗਈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹਾਵੇਗਾ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਲਿਖੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੂੰਗਿਆਂ ਬੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਖਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਖਮ ਵਿਦਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਆਸ ਵਰਗੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ, ਕਈ ਫਿਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੇਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਉਬਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਇਉਂ ਗਾਉਂਦਾ ਭਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਇਉਂ ਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਾਪੈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਦੂਰ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ, ਕੋਈ ਇਉਂ ਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ
हाथ पै नेरा सहजे होए सो होई। इस तरह करके हरेक कोई अपना अपने हिसाब नाल जिन्ना किसी नूं बल मिलिया होया हरेक गाउंदा, हरेक मत वाले गाउंदे ने, हरेक ऋषि मुनि गाउंदा। जिन्नी जिन्नी बख्शिश कीती आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोए तेती। पर फिर भी कहने तुमरा लखा न जाए पसारा, के बिद सजा प्रथम संसारा। कथना कथी न आवे टोट, या कथन करद्या बड़े बड़े कथाकड़ां कोलों अज तक उहदा टोट नहीं आया, भाव सिरा ही नहीं मिलिया, अंत नहीं पिया है, कोई टोट ही नहीं आई। ਉਹਦੇ जे कहिए वाहिगुरू के दर के उत्ते कोई घाटा पै गया भी बड़िया ने कथन कर दिता, ਉਹਦੇ दर के उत्ते कोई घाटा भी नहीं है। बड़िया बड़िया ने कथन किया, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। सो कहते ने कईयां ने कथन किया, बेअंत लोगों ने, करोड़ों लोगों ने पिछले समय विच बीते हुए विच, बेअंत लोग अज कथन कर रहे हैं, बेअंत लोग आने वाले समय में कथन करनगे निमरता पूर्वक। पर कोई बंदा उहदा अंत नहीं पा सकता। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया, उहदा अंत कोई पा ही नहीं सकिया। सो इस करके वो ऐसा वाहिगुरू है, सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह उहदे ते फिर किरपा कर दिंदे ने। हुण जे कोई गावे उहनूं, हुण कई लोग इउं गाउंदे ने, ये तो हो गए दो पक्ष नखेत ते विधि पक्ष विच, कोई किवें गाउंदा कोई किवें गाउंदा। हुण कई लोग उहनूं काहदे काहदे वास्ते गाउंदे ने, फिर उहनूं उही चीज़ दे दिंदा, क्योंकि अपना एक निशाना हुंदा कि वाहिगुरू मैनूं आह दात बख्शो, वाहिगुरू मैनूं आह किरपा करो। हुण कई लोग जिहड़े ने उहदे तो बल मंगदे ने, तां इत्थों ही बल राम लै नाल बाणा दह सिरकाया, तैथों ही बल किशन लै कंस केसी पकड़ गिराया। सारिਆਂ ने तेरे कोलों ही बल लिया। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ लोग उन्होंने बल वास्ते गाउंदे ने, उन्होंने वाहिगुरू बल बख्शिश करते हैं। गावै को ताण, कोई गाउंदा मैनूं वाहिगुरू ताण दे, मैनूं बल दे, हे वाहिगुरू मैनूं बल दे, मैं लखां वैरियां नाल कल्ला ही जा लड़ां। वो बख्शिशां वाहिगुरू तो प्राप्त करते हैं कि मैनूं इन्ना बल दिओ, मैनूं इन्ना बल दिओ। सो जिवें भाई बचित्र सिंह ने कहा, महाराज जे आप जी बल बख्शोगे, आप थापड़ा देओगे तां मैं जाके लड़ सकदा। महाराज ने कहा, बचित्र सिंह तू साडा शेर है, बब्बर शेर। फिर महाराज ने 5 थापड़े भाई बचित्र सिंह नूं बख्शे, लै बचित्र सिंह हुण हाथी नूं तू ही मारना। फिर सतगुरु महाराज कहने, जिन्ना कि कोई बल मंगदा ना होवे किसै ताण, उन्ना को उहदे च बल हो जाता, जिन्ना जिन्ना बल मंगदा। कोई ये तो रब नूं कह ही नहीं सकिया कि मैनूं भी रब बना लै। चलो जे कोई ये भी कह दे उन्होंने कि मैं भी रब बनना, फिर तो बस वो विच ही लीन हो जाएगा, फिर तो गल ही खत्म हो जानी, दूजा तो बनना ही नहीं रहा उत्थों। इस करके जिन्ना जिन्ना किसी ने बल आराधना करके मंगया है, इउं तो हरणाक्ष ने भी बल मंगया, रावण ने भी बल मंगया, जिने जिने तपस्या करके जिन्ना जिन्ना बल मंगया। ब्रह्मा ने तपस्या की 10 लाख वरा देवी दी। जो देवी प्रगट होई, कहन लगी की चाहिदा, किहड़ी गल्लों याद कीता, कहने मैनूं सृष्टि दे रचण दा बल दिओ। कहन लगी तैनूं सृष्टि दे रचण दा बल मैं नहीं दे सकती, सृष्टि दी मैं पालनहार हाँ। सृष्टि नूं मैं थां थां दे उत्ते देखना है, थां ते पहुंचाउणा है हरेक चीज़ नूं। मैं सृष्टि नूं रचण वाली नहीं हाँ, ना मैं इहनूं बल दे सकदी हां। फिर कौन दिंदा? कहंदे ये तां अकाल पुरख दी ही भगती करनी पए। फिर 10 लाख वरा तपस्या की, जदों अकाल पुरख की आकाश बाणी हुई, तप कर तप कर तप कर, तां इहने तप कीता। ब्रह्मा ने 10 लाख वरा। फिर परमेश्वर ने पूछा की इच्छा, कहने सृष्टि के रचण का बल बख्शो। गावै को ताण, ताण वास्ते गाया इन्हें कि मैनू इन्ना बल दिओ कि मैं सृष्टि की रचना कर सकां, होवे किसे ताण। फिर उसे किसी ने भी बल दे दिंदा। जे आपां भी करिए उहदी तपस्या, फिर मैनू तपस्या दिओ। सो जिवें बड़े बड़े भलवान ने, बड़े बड़े खिडारी ने,
वो भी वाहिगुरू को आके इत्थे मंग के जाते, मैं ओलंपिक च फस्ट आवां, मैनू इन्ना बल दिओ कि मैं 400 मीटर की रेस सब तो पहला लंघ जावां। महाराज उन्होंने उन्ना ही बल दे दिंदे आ। जिवें भी कोई विद्या का बल मंगदा है, कोई तैराकी विच बल मंगदा है, कोई संगीत विद्या विच बल मंगदा है, जिन्ना भी कोई बल किसी नूं भी मिलदा है वो सारा वाहिगुरू तो ही मिलदा है। जो भी तुसीं लैणा वाहिगुरू तो लो, जो भी आपां मंगांगे उही वाहिगुरू उन्ना ही बल आपां नूं बख्शिश कर देणगे। सानूं महाराज जी कथा का बल बख्शो जे मंगीए, किन्नियां कथा करनियां। संत बाबा करतार सिंह जी 14 कथा करते सी एक दिन च, इन्ना बल मंगया रब तो, और रब्बा मैनू नींद घटा दी, मेरी रोटी घटा दी, पर कथा मैनू ज़्यादा नहीं करनी। असीं नाल रहे, थक जाते हुंदे सी, सवेरे चल पैना, शाम तक अद्धा अद्धा घंटा लाउंदे सी। हरेक 14 पिंडां च कथा रख लेंदे, चल अगले पिंड, चल अगले पिंड, 14 थाई प्रचार कर देना इक्को दिन दे विच। सो इस करके उन्होंने यही बल मंगया। किसी ने सिमरन का ही बल मंगया, एक दूजी बहुत लख होए, लख होवे, लख 20। महाराज मेरिया लखां जबाना बना दो, मैं तुहाडा इन्ना सिमरन करा। महाराज मैनू 100 पाठ जिन्ना बल दिओ, 100 जपजी साहब रोज़ पढ़ ला। मैं ये भी तो पहला कड़ाह प्रसाद करके बेनती करनी पैनी, मैं इन्ना इन्ना बल बख्शो। कई सिंह अरदास करके ताबिया बह के, महाराज मैनू कल्ले नूं ही खंड पाठ करन दा बल बख्शो, फिर वो कल्ले ही कर लेंदे। जिहा जिहा मर्जी मंग लो महाराज तो उहा जी बल अकाल पुरख जीव नूं बख्शिश कर दिंदे ने। दावै को दात जाणै नीसान, कई दातां वास्ते उन्होंने गाउंदे ने, परमात्मा नूं दातां लई गाउंदे ने। मैनू धर्म दिओ, अर्थ काम मोख, अच्छा भई तू इह लै लै। कई जिहड़े ने वो कहने मैनू नाम पदार्थ दिओ, प्रेम पदार्थ, ज्ञान पदार्थ, मुक्त पदार्थ बख्शो, कहने चंगा भई तू इह लै लै। कई कहते ने महाराज मैनू आह दातां दिओ, वो लैने। जाणै नीसान, नीसान हुंदा प्रगट। कई कहते ने मैं तेनों प्रगट ही अपने सामने दर्शन करना चाहुंदा तेरे, मैनू दर्शन दिओ। किवें? महाराज 10वें पातशाह गंगा के किनारे जो खेड रहे पटना साहब बच्चों के नाल, 4 साल की सारी उम्र है, 4-5 साल की, पंडित शिवदत्त अपने मंदिर दे विच बैठा पूजा कर रहा है। गंगा के किनारे ही है मंदिर। वो पंडित शिवदत्त नूं इन्नी शरधा हुई, कहना जे तुसीं अकाल पुरख का अवतार हो तो मेरी एक शरधा पूरी कर दिओ। ऐं मन के अंदर बैठा सोचदा, समाधि ला के भी मैनू रामचंद्र जी के रूप में दर्शन दे दो। जाणै नीसान, प्रगट ही मैंने आऊं दर्शन दिओ। जिवें जिवें किसी ने दर्शन, वैसे वह कोई दर्शन नहीं है, वास्तव दे विच वाहिगुरू का कोई दर्शन नहीं है, वाहिगुरू प्रकाश रूप ही है। पर जिवें प्रेमी की शरधा बन जाए वो उहो जिही बन के दर्शन दे दिंदा उहनूं। जद आवाज आई शिवदत्त नूं, शिवदत्त आंखें खोलो हम आ गए। जब देखा रामचंद्र जी का एडा वड्डा कद, क्यों रामचंद्र का कद लगभग 7 फुट के करीब है। वो पुराने सी ना, पुराने लोगों के कद 7-8 फुट के करीब होंगे सी। ਇਹਦਾ ਹੁਣ हौली हौली कद्दियां जिहियां रह गईयां, ਹੁਣ 4-4.5 फुट के कद आ गया ਨਿਆਣੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੀ 7-8 फुट, ਆ ਭੀਮ ਹੁਣੀ 8-8 फुट ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਸਤਰਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। जब उपर उठिया तो महाराज सामने 4 साल की उम्र च खड़े हसते ने, कहने हो गए शिवदत्त दर्शन? कहने हाँ जी। हो गई तेरी इच्छा पूरी? कहने हाँ जी। कहने लै इत्थे बैठ के भजन करया कर, सेवा करया कर। तो जिवें भी कोई कहे कि मैनू इस रूप में दर्शन चाहिए तेरे, उस रूप में दर्शन देने। जिवें गुरु अर्जन देव जी को भट्ट ये आए चल के भट्ट, सो कह लगे महाराज सानू विष्णु जी के रूप में दर्शन देन तां असीं मन्नांगे। विष्णु रूप में दर्शन हो गए। तीजे पातशाह कोल पंडित माईदास आया, विष्णु के रूप दर्शन कर ले, कृष्ण जी के रूप दर्शन कर ले, मैनू फलाने रूप दर्शन दिओ, क्योंकि सारे तो तेरे विच ही समाए हुए रूप ने। तुसीं जिहड़ा मर्जी रूप कढ के बाहर उन्हें दिखा दिओ प्रेमी नूं, वास्तव च तुहाडा कोई रूप नहीं है। चक्कर चेहन अर बरन जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर वेख भेख को कह ना सकत के, कुछ भी नहीं है इत्थे वैसे। पर साडी शरधा हुंदी जिवें
उवें सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह सानू दर्शन बख्शिश करते हैं। जिवें कोई गाउंदा है अपनी शरधा नाल, जिवें कोई धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक करी जाना उन्होंने गुरु नानक देव जी के रूप में आके मिल पैंदे ने। सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते मैं तो जिवें कोई मैनू याद करता मैं तो उवें ही दर्शन दे दिंदा। गावै को गुण वडियाइयां चार, कई आउं गाउंदे ने कि मेरे च इन्ने गुण हो जाण। जिन्ने गुण कोई मंगदा है उन्हां गुणां वास्ते वाहिगुरू अगे अरदास करदा, पाठ करदा कि मैनूं तां इन्ने गुण बख्शो। महाराज सच्चे पातशाह उन्होंने उन्ने ही गुण दे दिंदे ने। किसी भी काम लई तुसीं आराधना कर लो, वाहिगुरू मंत्र दी, मूल मंत्र दी, जपजी साहब दी, सुखमनी साहब दी, कि महाराज सच्चे पातशाह मैनूं इन्ना सोहना चित्रकार बना दो, मैं इहदे वर्गा दुनिया च ना कोई होवे। वो है जी बना देणगे। लै बई सोभा सिंह तेरे वर्गा कोई ना होएगा। सोभा सिंह के चित्र देखदियां इउं प्रतीत हुंदा महाराज सामने साक्षात खड़े ने। सोभा सिंह नूं वो गुण दे दिता। भाई सुरजन सिंह रागी ने मंगिया महाराज एक ऐसी कीर्तन की दात बख्शो जिथे बैठ के करा बस संगत निहाल हो जाए। लै बई सुरजन सिंह तेनू कीर्तन की दात दी। भाई गोपाल सिंह रागी नूं ऐसी दात दी प्रकरमा हरमंदर साहब दियां भर जांदियां सी, नहीं तो प्रकरमा च संगत नहीं बहती। हुण देख लो जाके कोई रागी कीर्तन करे हरमंदर साहब, प्रकरमा च बहण नूं थां नहीं सी हुंदा, इन्नी संगत कीर्तन सुन जांदी सी। उन्हां दा उन्हां नूं कीर्तन का ही गुण दिता होया सी। किसी ने कथा का गुण मंगिया, किसी ने कीर्तन का मंगिया, किसी ने कोई गुण मंगिया, किसी ने मंगिया वाहिगुरू मैनूं जत सत की दात दिओ, उन्होंने जत सत दे दिता। जिन्हें जिहड़ा भी गुण मंगिया सतगुरु महाराज ने उन्होंने उही गुण की दात दी। किसी ने मंगिया मैनूं सारे ही गुण दे दिओ, कहने सारे ही ले ला। सो कोई वाहिगुरू तो मंगदा वडियाइयां बख्शो, नाम दियां वडियाइयां दिओ, बस मैनूं तां किरपा करके ये वडियाई दिओ कि नाम की वडियाई मिले। अज भी यही आया सी बचन महाराज का श्री मुख वाक दे विच कि मैनूं तां इक्को वडियाई दिओ, जिन वडियाई तेरे नाम की ते रत्ते मन माहे, नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। चार तो भाव सुंदर, तेरियां सुंदर वडियाइयां करन दा मौका दिओ, मैनूं वडियाइयां बख्शो नाम दियां, मैनूं चंगे गुण दिओ महात्मा वाले। गुण भी वक्खो वखरे ने, कोई सत संतोख दया धर्म विचार मिठ बोलड़ा सुभाव मंगदा है, कोई कहना मैनूं दुनियावी गुण दिओ, इन्ना गुण दिओ जिस करके मेरे कोल पैसा ही पैसा। कोई गुण पैसों लई मंगदा है, कोई किवें मंगदा है। तेरे दर तो जिहा जिहा किसी ने आके मंगिया उहनूं तू ओहा जी गुण दे दिता, जिहने जो मंगिया उहनूं ओही मिल जाना। महाराज कहते तैनूं की गुण चाहिदा? महाराज मेरे च तां कोई गुण ही नहीं, मैनूं तां कोई पुछना ही नहीं, मैनूं तां महाराज उन्होंने उही गुण दे दिंदे ने। लाल चंद हलवाई भंगाणी वाले युद्ध च 10वें पातशाह नूं कहंदा, कोल खड़ गया हथ जोड़ के, कहने आ बई लाल चंद महाराज मैनूं एक अफसोस है। कहंदे की? कहंदे मठियाइयां तां मैं बहुत खवाइयां संगत नूं लंगर च बना बना के, आ जंग जा देख के मेरा भी मन करदा, पर मेरे च गुण नहीं ना है भी मैं तलवार चला सकां। महाराज किते मैनूं भी यह बख्शिश करो गुण दी। महाराज कहने ये किहड़ा औखा, आ लै फड़ ढाल, आ श्री साहब आ देख, आप ही सिखाउण लग गए महाराज। उधर जंग चल रहा सामने, कहने ला जा कोई श्री साहब मारे ना अग्यों तां ढाल ऐ करदी खब्बे पासियों, जद मौका जा देखे खाली उधरों मैं गाटा ला दी। फिर कहना जी 7 वजन चढ़ाता घोड़े ते। देखो एट ए टाइम ही गुण दिंदा, वो ये नहीं हुंदा भी फेर दऊगा। जिवें छज्जू झौर दे सिर ते हथ रख के उस वक्त ही अर्थ करवाते। लाल चंद हलवाई नूं उस वक्त ही जंग विच लड़वाता। शुभ गुण देण लग्गियां देर नहीं लाउंदे सच्चे पातशाह। जे आपां कहिए मेरे ते ये गुण नहीं, मैं पता नहीं कद जाके सिखांगा, महाराज कहने हुणे सिखा दे तैनूं, देर नहीं लाउंदे। जिवें पहिलां भी आप नूं सुणाया सी प्रसंग, बई बंदे ने महाराज नूं कहा महाराज मैं टीरा, मैनूं लोग टीरा टीरा कहंदे, मेरी अख 'च टीर पैंदा। महाराज कहने अखां बंद करता, जरा खोल हुण अपनी अखां। कहने जा शीशे 'च देख के आ। ਜਾਂ शीशे देखा, कहना महाराज हुण तां चंगियां भलियां ने। महाराज कहने कुछ भी नहीं होया है। की होया?
इस करके पातशाह कोल तां उसे वक्त ही किरपा हुंदी है। बस पिछे उहने एक चीज़ खड़ी सी, वो बंदे ने जिन्हें चीज़ मंगी है ना, ਉਹਦੇ मगर ਉਹਦੀ कमाई काम करती है। ਆਪਾਂ बिना कमाई तो आके मंगते हैं ना, इस गल्लों काम खराब हुंदा अपना। पहला कमाई करो, मेहनत करो, अभ्यास करो, बाणी पढ़ो, तां आके मंगो, तां छेती मिलती चीज़। तो आप फोकट मंगते हैं महाराज तो कि एवं ही पता नहीं खड़ जाएंगे आके महाराज बख्शिश कर देंगे। महाराज कहने भाई इं नहीं, पहला मेहनत करो, कमाई करो, अभ्यास करो, मर्यादा कमाओ। गावै को विद्या विखम विचार, कोई वाहिगुरु तो इं मंगदा कि मैनू विखम कठन विद्या की दात बख्शो, जिहड़ी विद्या किसी नूं ना आवे वो मैनू दिओ, वेदांत की विद्या मैनू बख्शो। सो इस प्रकार ज्योतिष के 6 अंग ने, वेद के 6 अंग ने, 6 दियां 6 विद्या मंगदा। कठन विद्या लई लोग कराउंदे नहीं अखंड पाठ कि साडा बच्चा फलाने पेपर चों पास हो जाए, इहनूं विद्या की दात देण महाराज। महाराज सच्चे पातशाह आपे ही फिर विद्या दिंदे ने, आप ही किरपा करते हैं। किसी नूं डॉक्टर बनाउंदे ने, किसी नूं इंजीनियर बना देंदे, किसी नूं कुछ बना देंदे ने, किसी नूं हरेक प्रकार की विद्या जिहड़ी आ ना सच्चे पातशाह बख्शिश करदे ने। जिवें किसी जोतशी ने आके मत्था टेक के महाराज अगे हाथ जोड़े, महाराज 10वें पातशाह नूं कहण लग्या महाराज मेरे ते किरपा करो। कहंदे की चाहिए? महाराज ज्योतिष विद्या का संपूर्ण ज्ञान हो जाए मैनूं। महाराज हस के कहने चंगा जा हो जाऊगा। उहनूं वो मंग लिया, उहनूं उही देता। फिर महाराज सच्चे पातशाह जद जा रहे हजूर साहब नूं तां रास्ते दे विच फिर गए दमदमा साहब तो ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कहण लगे सारे इत्थे खड़े उसे कम जा आए, जरा पिंड दे विच इकल्ले ही चले गए। एक घर दे मूहरे खड़े हो गए जाके, वो अंदर घरदिਆਂ ਨੂੰ सुनेहा दिता भी बाहर कोई आया घोड़े ते। वो बड़ा बिरध हो गया। जब बाहर आया हौली हौली पछाणिया कि महाराज सच्चे पातशाह आए ने, चरनां ते सिर रख। महाराज कहने इस तां अगे जा रहे सी, मिलण आए हैं, लिया तेरी ज्योतिष देखिए, या जिहनूं मिलण जा रहे हैं मिलेगा कि नहीं? महाराज सच्चे पातशाह ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ मर जाएगा, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ मिलना? महाराज कहने क्यों? कहने महाराज ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ दर्शन नहीं दिखे, जे ਉਹਨੂੰ दर्शन हो गए ਉਹਦਾ भला हो जाएगा, रब ने ਉਹਦਾ भला करना नहीं, इस करके वो पहਲਾਂ ही चढ़ाई कर जाएगा। औरंगजेब महाराज हस पे कहने हाँ इस तरह ही है, मैं सिर्फ तेनों देखण ही आया सी भी तेरे अंदर हुण किन्ना क चानण है। सो इस करके महाराज तो जिन्हें जिहड़ी विद्या का विचार मंग लिया, महाराज ने उन्होंने उही बख्शिश कर दी। विद्या कोई भी मंग लो, कीर्तन विद्या मंग लो, कीर्तन वाले नूं कीर्तन की दात देने, कथा वाले नूं कथा की दात देंदे ने। जिहड़ा भी आपां विखम विचार मंगना है, महाराज तो औखे तो औखी विद्या मंगनी है, वो ही बख्शिशां करदे सच्चे पातशाह। जिहड़ा भी मंग लैंदा उस उत्ते उही किरपा कर दिंदे ने, वैसे भी किरपा कर दिंदे ने। धन्ना सिंह घाही भाई नंद लाल नूं लंघदिआं देख के घोड़ियां दी लिद्द साफ करदा सी, अखां 'चों अथरू आ गए। मैं बैठा सोचे, कहना कदे असीं भी कविता लिखांगे, कदे असीं भी प्रचार करांगे भी जिवें आ भाई नंद लाल होणी ने जां होर ने। महाराज सच्चे पातशाह अंतरजामी जानी जान कहने पहरेदार नूं कहने धन्ना सिंह घाही नूं बुला के लियाओ। लिआंदा। धन्ना सिंह की गल दिल छड्डी बैठा? धन्ना सिंह तेरी वर्गी तो कविता किसी ने लिखिया नहीं करनी, सब तो वधिया कविता होवेगी तेरी। धन्ना सिंह तू तो सिੱਖੀ का इन्ना प्रचार करेगा ना, आके बड़ी कथा करेगा तू। उदों का दिता होया वार धन्ना सिंह घाही नूं फिर उन्हें बड़ा प्रचार किया आके। सो महाराज सच्चे पातशाह ने किरपा करती उहदे ते। गावै को साज करे तन खेह, कई वाहिगुरू नूं इस करके गाउंदे ने कि जिहड़ा साजिया होया शरीर है ना, ये थोड़ा जिहा अखर ब्रह्म ज्ञान का आ गया। हाँ